Today's brief came with more red flags than my last relationship. Let's decode it. Before I decode, एक introduction दे देता हूँ. This is Vineet Wala. I'm working at Sochius, a creative agency where I am at a position of associate group account manager at a very senior level. Like I handle 5-6 team members and good 5-6 brands. So this is my short professional intro, I would say. मैंने एक छोटा सा step लिया है to do like a 30 days challenge where I'll come every day share my daily life की marketing world में as a senior position or as a senior person, how does my day look like and what all challenges I face, how I train or guide my team members, जो brands पे मैं काम कर रहा हूँ उसका मैं छोटा सा आपको insights वगैरह दे सकता हूँ. See, I am doing content creation since last 5-6 months and आप मुझे shorts पे देखते ही होंगे where I break down ads, marketing world and all. तो I thought यार अगर मैं marketing world में हूँ and there are a lot of people who want to know like how marketing world or agency work in general. So this is just video for them to know कि in a marketing agency कैसे function होता है, कैसे processes होते हैं and all. So I'll just quickly share my views, my days and how do I work or maybe challenges जो भी face करता हूँ वो आपके सामने रखूँगा and some sort of learnings भी बताऊँगा कि कैसे इसको tackle करना चाहिए and all. So like I mentioned in the start कि आज एक brief आया with so many red flags. मतलब जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर करता हूँ और मे बी ऑफिस जाता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि यार टुडे इज़ अ वेरी नॉर्मल डे. आई मीन सबसे बड़ा गलती मैंने वही कर दिया. And the moment I enter the office and after had my coffee and all, तो एक brief आ गया. Now a typical client behavior, like अगर आपको brief आ रहा है तो you expect lot of clarity, but at times क्या होता है कि they share a brief with lot of information. I mean it's not a brief but it's like a hell lot of information that you have to just decode now. तो ब्रीफ में इतना मस्त एक्सपेक्टेशन ये था कि प्रीमियम चाहिए, क्वर्की चाहिए, इट शुड बी वायरल वर्दी, क्वर्की, विट्टी, जितने भी जार्गन्स या जितने भी सोशल मीडिया वर्ड्स है सारे डाल दिए ब्रीफ में. एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक एनी पर्सन और whoever इज राइटिंग द ब्रीफ कुड डू. लाइक अगर आपको ब्रीफ करना है किसी को तो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट यू वॉन्ट. सो एनीवेज मतलब टिपिकल क्लाइंट उनको तो ब्रीफ करना है, बाद में एजेंसी को जो देखना है मतलब उनको ही डिकोड करना है, उनको ही हमारे पास आइडियाज़ लेके आना है. सो टिपिकल डे एट ऑफिस. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट what I do when I get any brief, like even if it is a clear brief or like say brief like this, so I decode it or maybe I just break it down in a very simple step. So for example अगर मुझे same brief कोई 5 साल के बच्चे को explain करनी है तो how would I explain, right? इतना सिंपल ब्रेक डाउन करना उस ब्रीफ को बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू नेवर नो लाइक people don't understand very complicated language and that is something we as a client servicing person or maybe say brand custodian has to do when there is a brief coming in, because we are the bridge between your client POC and your internal team, right? So हाँ ब्रेक डाउन किया एंड उसमें से मैंने प्रॉब्लम पहले तो अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट दे वांट टू सॉल्व फॉर इट. एंड देन लेटर ऑन वंस वी नो कि क्या प्रॉब्लम है, then we started digging in कि what is the expectation or what kind of objective they want to drive. Is it like awareness? Is it like consideration? Is it like sales or maybe just engagement? Whatever, XYZ जो भी है. तो ऐसे small steps में break down किया and then we went to the creative team. And obviously like when you get very weird brief from the client, you also get lost sometimes. जब ऐसी brief आती है जहाँ पे आपको clarity नहीं है तो the best thing or like first and foremost thing that you have to do is ask right question. I mean lot of people in this industry, I mean जो entry level है या who have just completed like 2-3 years, even for that matter people like us who have spent good 6-7 years in the industry, they do such mistake कि तो question ही नहीं करते client को. लाइक उनके ब्रीफ पे उनको क्वेश्चन करोगे आपको ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाएगा या आपको वो ब्रीफ डिकोड अपने आप हो जाएगी. सो दैट इज़ व्हाट वी डू. लाइक मैंने तो ऑब्वियसली वो फ़ोन उठाया एंड पूछ लिया कि ये मेरे को क्लैरिटी चाहिए एंड ही जस्ट आंसर्ड वॉट एवर क्वेश्चन आई आस्क्ड एंड उससे मुझे लाइक 80% ऑफ द ब्रीफ डिकोड हो गई. सो दैट्स व्हाट लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आस्क राइट क्वेश्चन. अगर आपको पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछना है, यू हैव लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, इवन फॉर दैट मैटर क्लॉड AI.
जस्ट आप ब्रीफ डंप करो और उनको पूछो व्हाट इज लाइक से I want to, understand this brief and I want to get on a call with the client. Just give me what all questions should I ask to the client to get more clarity about this brief. आपको obviously वो 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही डंप कर देंगे एंड यू जस्ट पिक इट फ्रॉम देयर कि कौन से रेलेवेंट क्वेश्चन है एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू एग्जैक्टली नीड फ्रॉम दैट ब्रीफ, तो ऑटोमेटिकली आपका वो सोल्यूशन उधर से निकल के आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंड लाइक स्टार्ट ऑफ द डे में. उसके बाद हम लोग ने थोड़े ब्रेनस्टॉर्म किए कि क्या आइडियाज हो सकते हैं. अभी उसके ऊपर भी अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे ऑब्वियसली. मतलब मुझे एक वीडियो पे एक ही टॉपिक फोकस करना है. सो ये वाले वीडियो में आई एम ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन ब्रीफ एंड आई डोंट नो अबाउट अदर इंडस्ट्री बट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ब्रीफ राइटिंग इज वन ऑफ द से पिलर ऑफ say CS role or maybe a creative person, because that brief holds lot of value, like your campaign stands on that brief कि आपने चालू कहाँ से किया. यो अगर आपका वो स्ट्रांग है ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेस जो आगे के लाइक क्रिएटिव आइडिएशन, एग्जीक्यूशन एंड XYZ जो भी है ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएंगे. अगर आपको जेन्युइनली सीखना है ब्रीफ राइटिंग तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो. आई हैव अ फ्रेमवर्क रेडी विच आई फॉलो फॉर माय ब्रांड्स और मे बी फॉर माय टीम, बिकॉज मैंने उनको बताया कि कैसे ब्रीफ को लिखना चाहिए, कैसे डिकोड करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड आस्क व्हेन देयर इज अ ब्रीफ एंड ऑल. तो मेरे पास एक छोटा सा फ्रेमवर्क रेडी है. सो इफ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि मुझे चाहिए. आई जस्ट मेक लाइक अ वर्ड डॉक और समथिंग एंड वो कमेंट्स में डाल दूंगा. बट ऑब्वियसली आप बताओगे तो मैं भेजूंगा, नहीं तो नहीं. प्रिटी मच दिस वॉज द हाईलाइट ऑफ द डे कि हाउ डिड आई डिकोड द ब्रीफ एंड हाउ ब्रीफ राइटिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल. सो दैट वॉज द मेन हाईलाइट ऑफ द डे एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यार मतलब मैंने प्लान वगैरह नहीं किया ये पूरा होल वीडियो एंड ऑल. दिस वेरी अनस्क्रिप्टेड. यू कैन सी मी फंबलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स और मे बी थिंकिंग एंड स्पीकिंग. सो इट इज प्योरली रॉ वॉट एवर आई हैड एक्सपीरियंस थ्रू आउट द डे एंड yeah, matlab this is like a day one of marketing majdoor I would say. But like you will see me every day for like next 30 days. So I just have one question, like should I do 21 days challenge or 30 days challenge? I mean, you can let me know in the comments. If you like this video then definitely I'll think about 30 days. But agar response nahi aaya to I will also think कि यार कितना लंबा खींचना चाहिए कि नहीं. So yeah, every day I'll come up with some interesting topics or maybe life instances which I have faced on a daily basis. पता नहीं यार कितना रिलेटेबल होगा या कितना इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, बट आई वुड जस्ट से कि यार सपोर्ट कर दो यार. सो यार कीप वॉचिंग. आई विल कीप ऑन पोस्टिंग एवरी डे एट 9 AM. सो माई प्लान इज कि मैं एवरी डे सुबह 9 AM को ये वीडियो पोस्ट करूंगा ऑफ माई लाइफ. ऑब्वियसली लाइक प्रीवियस डे का वीडियो नेक्स्ट डे 9 AM आ जाएगा. आई एम टेकिंग दिस बोल्ड स्टेप ऑफ डूइंग 30 days और 21 days चैलेंज ऑफ पुटिंग आउट वीडियोज एवरी डे. आई डोंट नो कितना पॉसिबल होगा बिकॉज मेरा स्केड्यूल बहुत ही हेक्टिक होता है. लाइक मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, इवन इन जनरल कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना हेक्टिक होता है कि you have to remove time for it and I'm taking that step. But anyways, मतलब एक चीज़ मैं बोलूँगा, I don't know if you will hate me or no, but if you hesitate then definitely there's like a less potential person will come and take your spot. Honestly, people reward audacity and not potential. That's the fact. I mean, I'm not saying it, but I've observed it. So please do subscribe to my channel and click on that bell icon so that आपको notification आए and you can just start your day and maybe I'll help you sort your day before your day starts. You never know.